spent to look at the unique challenges and stresses that parents are going through in the process of bringing up their children and look at approaches which can help them to reach out to children better and ensure their emotional, physical, and social well being. So, today's session for and fifth grade parents is being presented by my colleague, Ms. Nirja. At the end of the session, we will have some time for addressing the queries which have come to us through feedback in the Google form, and also through the session. Parents are welcome to write their queries and concerns through chat. So with this, I would like to hand over to Nirja. Thank you, Shivani. A very good morning to all the parents present here. I'm very delighted to be here with all of you. I'd like to say that I believe that being a parent, एक parent बनना इस दुनिया में शायद सबसे important और सबसे difficult काम है. So I'm wanting to say a big hi to all the parents out here for the amazing job you're doing, and especially amazingly difficult job during the pandemic, because pandemic has been stressful. The parenting has been kind of stressful. To be in homes 24 hours, cooped up with your children, to be the parent, to be the teacher with your child, to do everything, to be everything for your child, to do the cooking, cleaning, looking after the elders in your family, even operating with economic cut downs. So it's been hard on parents, on us parents. So hats off to you, all the parents here, for your surviving, for your managing, and for doing the amazing job you're doing as parents. And on this note, I would like to once again introduce myself. I'm Nirja Jain, the school counselor from Shrijan School. And today we are doing a webinar on parenting. We will be going through the webinar with 2-3 basic points. In the beginning, we'll be looking at the feelings जो हमें भावनाएं हो रही हैं as parents. How are the feelings in this pandemic time? How are they affecting me and my child? Or secondly, I would be looking at the connect which I have with my child, the connect between the parent and the child. And thirdly, we'll be looking at some of the questions which you have raised. आपने जो कुछ Google form में सवाल भेजे, उनके लिए हम मिलकर के देखेंगे कि क्या possible solutions या experiences हैं जो हम देख सकते हैं. So on that note, I'd like us to maybe pause for a while, 2 मिनट के लिए रुकें और हम अपने दिमाग में आने दें सब लोग कि इस पैंडेमिक के दौरान कौन से ऐसे 4-5 स्ट्रेसेस हैं या तनाव हैं जो मेरी लाइफ में एक्टिव रहे, जो मैं अपने कंधों पे लेकर के कैरी कर रहा हूँ या कैरी कर रही हूँ. कौन से वो 4-5 स्ट्रेसेस हैं मेरी लाइफ में. एंड आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप उसे चैट में प्लीज लिखें, तो आई ऑल्सो लाइक टू रीड देम. कोई भी स्ट्रेसेस जो हमारी लाइफ में बहुत एक्टिव रहे. I can see that it's been a tough time in terms of managing work and home, managing online classes, managing children, managing your own emotions. And I'm hearing you. I'm understanding you, and I'm extending my empathy to you. मैं आपके लिए अपनी सहानुभूति, अपनी हमदर्दी एक्सटेंड कर रही हूँ. Empathy extend करना, ये समझना. Yes, managing multiple tasks, roles, managing children and home and family response, mental stress, especially when you have to work from home. Yes, mental stress.
emotions, managing emotions of children. Yes, so I can hear you. There are lots of things we are going through, ups and downs. Yes, it's a roller coaster. And I think दूसरे को सुनना, एम्पथाइज करना पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एंड हमारे कनेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैं आपको सुन रही हूँ यहाँ पे, आपके जो आप चैट में लिख रहे हैं सुन रही हूँ, सुनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास अच्छा आप ऐसे कर लो, ऐसे करो, ला 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 ऐसे हो जाएंगी प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है तो सबके, आई कांट मैनेज चाइल्ड व्हेन ही कांट मीट हिज फ्रेंड्स। यस, सो आई कैन हियर ये चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ हो रही हैं तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपके जो आप कह रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, उसको मैं नकार नहीं रही, खारिज नहीं कर रही। आई एम नॉट डिसमिसिंग और निगेटिंग देम, आई एम लिसनिंग टू यू बिकॉज आई थिंक वेर एवर यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन हियर एंड नाउ। अपनी तरफ से आप बेस्ट कर रहे हैं। तो एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि दूसरे को कैसा फील हो रहा है। इस वक्त क्या मैं अपने आप से एम्पैथाइज कर सकती हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरे क्या स्ट्रेसेस हैं, या मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, और वैसे मेरे बच्चे को क्या फील हो रहा है। देखते हैं कि जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है, ये हमको कैसे अफेक्ट करता है। क्या जब एज अ पेरेंट मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, वो कैसे फील हो रहा है मेरी बॉडी में, क्या मेरी बॉडी में वो लॉक हो जाता है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस जो लॉक होता है, तो एम आई बिकमिंग कोल्ड, एम आई बिकमिंग टाइट, या मैं एम आई पुशिंग माई चिल्ड्रन अवे, एम आई जो मेरा, क्या मैं, एम आई स्क्रीमिंग, सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या मैं रुखी हो जा रही हूँ। सो लेट्स लुक एट दिस कि मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ स्ट्रेस में एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ। And I'd like to share a screen at this point of time, please. Okay. So how ये stress कैसे impact कर रहा है मुझे as a parent और मेरे बच्चों को। मुझे थकावट हो रही है, बहुत सारे काम इकट्ठे करने पड़े हैं तरह तरह के, तो फिजिकल मल्टीटास्किंग, फिजिकल मेंटल एग्जॉशन हो रही है, फीलिंग केज, घर में बाहर जा रहे हैं पर थोड़े सिमटे हुए हैं, एंड कन्फाइनमेंट है, इरिटेबिलिटी हो रही है, लोनलीनेस, एंगर, एंजाइटी, रोने का मन कर रहा है कई बार, यू नो, एंड कई बार हेडेक्स हो रहे हैं, नींद में डिफिकल्टी हो रही है। बच्चों को क्या फील हो रहा है, फिर हमारे बच्चों को क्या फील हो रहा है। बच्चों को एंजाइटी हो रही है, उनको लग रहा है मम्मा स्कूल कब खुलेंगे, पापा स्कूल कब जाएंगे। को लग रहा है कि हमारे को कोरोना तो नहीं हो जाएगा, ये डिजीज तो नहीं आ जाएगी हमारे घर में, इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। कुछ बच्चे बार बार हाथ धो दे रहे हैं जल्दी जल्दी, या वो घर में अगर न्यूज चल रही है तो बच्चों को लग रहा है कि उनको कई बार न्यूज समझ में नहीं आ रही। हम बड़े लोग न्यूज देख रहे हैं तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती, बट एंजाइटी हो रही है। हम सबके रूटीन अफेक्ट हुए हैं, हमारे भी, हमारे बच्चों के स्लीप अफेक्ट हो गई है। हम लोग हमारे टाइमिंग स्लीप के अफेक्ट हो गया। हमारा जो रूटीन था कि सुबह जाना होता था, आते थे, सोते थे, वो वाली चीजें अफेक्ट हो रही है, रूटीन। बच्चों की सबसे इम्पोर्टेंट प्ले स्पेस अफेक्ट हो गई, वो बाहर जाके खेल नहीं पा रहे, स्कूल को मिस कर रहे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज को मिस कर रहे हैं, उनकी भूख अफेक्ट हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंटली वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं, स्कूल के प्लेग्राउंड, कैंटीन, स्कूल की बसेस, स्कूल में अपने फ्रेंड्स, क्लासरूम में बर्थडे, चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू लॉट। एंड हम सबके लिए स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, सबके लिए, एंड बोर्डम भी बढ़ गया क्योंकि एंटरटेनमेंट के माध्यम लिमिटेड है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो मुझे और मेरे बच्चों दोनों को हो रहा है, ये हमारे कनेक्ट में, हमारे ब्रेन्स को कैसे अफेक्ट करता है। अगर हम इसको देखें कि मेरा और मेरे बच्चे का, अगर हम देखें कि मेरा और मेरे बच्चे का एक जैसे इंटर ब्रेन कनेक्शन, जैसे मेरा मेरे बच्चे से जो कनेक्ट है, उसके दिल से, उसके दिमाग से, उसके शरीर से, माई कनेक्ट टू माई चाइल्ड, बॉडी, माइंड, उसकी फीलिंग से, उसको क्या फील हो रहा है मेरे बच्चे को, क्या सोच रहा है मेरा बच्चा, क्या बच्चा मेरा कर रहा है। तो जो एक बॉन्ड है हमारे रिश्ते की, क्या वो अफेक्ट हो रही है स्ट्रेस से। क्या अगर हम इसको ऐसे वाईफाई कनेक्शन देखें, जैसे हमारे घर में वाईफाई होता है तो वो वाईफाई एयर में होता है, हम देख नहीं सकते,
तो ऐसे अगर हमारा कनेक्शन वाईफाई की तरह है हमारे घर में, तो क्या वो वाईफाई कनेक्शन में हम क्या स्ट्रेस में आके ऑफलाइन हो जा रहे हैं कभी कभी, और फिर कभी कभी ऑनलाइन हो जा रहे हैं? तो क्या हमारा जो कनेक्शन है वो बार बार अफेक्ट हो रहा है स्ट्रेस से? सो जो वार्मथ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटवीन मी एंड माई चाइल्ड। और वो पेरेंट में रहती है बट घटती बढ़ती है स्ट्रेस के हिसाब से। हमारे ब्रेन्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेस? ये ट्रायून थ्योरी ब्रेन का मॉडल है। इसमें हम देखते हैं कि 3 पार्ट्स दिखाए हैं वर्किंग ब्रेन के। हमारे ब्रेन में लोअर ब्रेन है जो रेड कलर में शो किया है, दैट इज द अलार्म सेंटर ऑफ द ब्रेन, सर्वाइवल ब्रेन। उसके ऊपर जो मिडिल में है वो है नीले रंग का दिखाया है, इमोशनल ब्रेन। और उसके ऊपर जो है सोचने वाला ब्रेन, हायर ब्रेन, ग्रीन कलर से। सो जब हम किसी खतरे से डरते हैं, हमें डर लगता है और हम सेफ नहीं फील करते, तो हम अपने लोअर ब्रेन में होते हैं, अपना जो ये रेड में दिखाया है सर्वाइवल ब्रेन में। और ऐसे में हम या तो फाइट करने की कोशिश करते हैं, या फ्लाइट या फ्रीज। तो जैसे मान लो मुझे डर लग रहा है कि घर में आग तो नहीं लग गई, या मेरे घर में कोरोना तो नहीं आ जाएगा, मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, या छोटे बच्चों को लग रहा है उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए, घबरा रहा है, तो उस वक्त वो अपने रेड सर्वाइवल ब्रेन में एक्टिव है। और उससे ऊपर वाला ब्रेन देखते हैं इमोशनल ब्रेन। इसमें हमारी बिग और स्मॉल फीलिंग्स होती हैं, जैसे हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, एंगर, जेलसी, स्ट्रेस। तो इस फीलिंग्स में इस वक्त अगर हम देखें तो पैंडेमिक के दौरान हम अधिकतर अपने इमोशनल ब्रेन, इस ब्लू ब्रेन में या सर्वाइवल ब्रेन में हैं, क्योंकि हम बहुत फीलिंग से अप एंड डाउन हो रहे हैं। जब हम इन दोनों ब्रेन्स में शांत होते हैं, अपनी इमोशंस को शांत करते हैं, मैं और मेरा बच्चा, तब हम ग्रीन ब्रेन में जा पाते हैं। ग्रीन ब्रेन इज द हायर ब्रेन। इट इज अबाउट प्लानिंग फॉर फ्यूचर, इट इज अबाउट जहाँ से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम अपने डिसीजंस लेते हैं, बच्चे भी। और आजकल जैसे सुनने में जैसे आता है कि बच्चों को अटेंशन में मुश्किल हो रही है ऑनलाइन, कई बार अटेंड नहीं कर पा रहे। शायद बच्चे ग्रीन ब्रेन में नहीं, बच्चे ज्यादा इमोशनल ब्रेन में है। और वो बच्चे जिस तरह से पहले पैंडेमिक से पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे, एक्टिव थे, वैसे उतने एक्टिव नहीं लग रहे, क्योंकि वो ग्रीन ब्रेन में नहीं है। अगर मैं एज अ पेरेंट अपने ब्लू ब्रेन, अपने इमोशनल ब्रेन से या अपने सर्वाइवल ब्रेन से अपने बच्चे से कनेक्ट करती हूँ, तो मैं इमोशनल ब्रेन में हूँ, तो मेरा बच्चा भी इमोशनल ब्रेन में ही अधिकतर रिस्पॉन्ड करेगा, और वो जो कनेक्ट है वो फिर ऑफलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बच्चे को कह रही हूँ, तुम ये अभी तक क्यों नहीं किया, तुम कब करोगे ये, तुम सुनते क्यों नहीं हो, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, अभी क्या हो गया तुमको, तुम अपनी बहन को देखो, वो इतना सारा काम कर ले रही है, थोड़ा इतना तो कर सकते हो बेटा। तो उस वक्त मैं इमोशनल ब्रेन से रिएक्ट कर रहा हूँ एज अ पेरेंट। जब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी इमोशनल ब्रेन में, हम दोनों ग्रीन ब्रेन में नहीं है, तो कनेक्ट नहीं बनेगा जहां हम मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, हम कनेक्ट बना सके। तो ग्रीन ब्रेन में आना बहुत जरूरी है अगर हम कनेक्ट में मिलकर के कुछ करना चाहते हैं एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड। कनेक्शन कैसे कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग को बातचीत करने की जरूरत है। लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर नीडेड अराउंड कनेक्ट विद माय चाइल्ड, कि मेरे बच्चे को क्या फील हो रहा है, मेरा बच्चा क्या काम कर रहा है, मेरे सर पे क्या लोड है, मेरे को आज क्या काम करना है, ऑफिस का, घर का क्या काम करना है। तो वी नीड टू कीप टॉकिंग विद आवर चिल्ड्रन एट होम। एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं हम डिमांड्स बहुत करते हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा डिमांड्स करेंगे या करेक्ट करेंगे, अपने बच्चे को टिक ऑफ करेंगे, तो अगर मुझे कोई दिन में 4-5 बार बोले ये मत करो, ये करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो शायद मैं भी आई वुड नॉट वांट टू हियर, मैं सुनना नहीं चाहूंगी, आई वुड शट डाउन, मेरा ब्रेन शट डाउन हो जाएगा, मैं सर्वाइवल ब्रेन में आ जाऊंगी। बच्चे भी ऐसे शट डाउन कर जाते हैं, वो नहीं सुनना चाहते। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग and less of correction. It's parenting with connection, not correction. And that is what works to begin with. Connection सबसे important है। So most importantly, जब मैं अपने ब्लू और रेड ब्रेन में हूँ, इमोशनल ब्रेन में हूँ, सर्वाइवल ब्रेन में हूँ, और मैं देख रही हूँ मेरा बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, या मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ जैसे मैं रिएक्ट नहीं करना चाह रहा, तो मैं रुकूं, आई स्टॉप,
आई टेक अ पॉज, पहले मैं देखूं मेरा ये स्ट्रेस है, ओके मुझे अभी ये हो रहा है, पॉज। आई वो जो पॉज है वो चाहे 4 सेकंड का हो, चाहे वो 4 मिनट का हो, 4 घंटे का, बट आई रिलैक्स, आई कम बैक टू मी, लुक आफ्टर मी, एंड मे बी आई नीड, व्हाट डू आई नीड टू डू, कैसे आप अपने आप को शांत कर सकते हो, क्या चीज हमको आराम देती है। जैसे अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है इस वक्त, मे बी आई जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, 1 2 3 4 inhale, 1 2 3 4 exhale, so I paused। और मे बी मुझे एक कप चाय पीने की जरूरत है, मैं स्ट्रेस में हूँ, या मुझे एक गिलास पानी पीने की जरूरत है, सिंपल। या मेरे पाँव में दर्द हो रही है, शायद मुझे बैठने की जरूरत है, मैं स्ट्रेस हो रहा हूँ। या मुझे इस कमरे से बाहर जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो कुछ चलेगा नहीं, तो मे बी बाहर जाऊं, क्योंकि बच्चे को देख के मैं इरिटेट हो रहा हूँ, तो मे बी आई नीड टू गो आउट एंड सी द स्काई, मे बी आई नीड टू लिसन टू म्यूजिक। आपको शायद म्यूजिक देना आराम देता है, म्यूजिक सुनना, या शायद टीवी में प्रोग्राम देखने की जरूरत है। तो वी नीड टू गिव आवरसेल्फ दैट हॉल्ट, दैट पॉज, जब मैं स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज करूं, एंड देन जब मैं शांत हो जाऊं, देन आई कैन, when I've taken care of myself and I'm charged, then I can connect to my child, I can say the right things, सोच के मैं देखो मेरा बच्चा क्या कर रहा है, once I see the child, then connection is easily possible, hear the child, see the child and see, then I can talk. Some of the concerns which have come from parents, let's look at them together. एक कंसर्न आया कि बच्चे सुन नहीं रहे, yes, which is what we just discussed, कि बच्चे शट डाउन कर जाते हैं, you know, they don't want to listen. So हम रोल मॉडल्स हैं अपने बच्चों के लिए, we are the role models. मैं कुछ कर रही हूँ, बोलती कुछ हूँ, बच्चा तो वो देखेगा ना जो कि वो देख रहा है। तो will I listen to my child before I ask my child to listen to me? मैं सुनूंगी तभी तो मेरा बच्चा मुझे सुनेगा। तो ये रोल मॉडलिंग है, एंड इट्स अबाउट लिसनिंग टू माय चाइल्ड। और हम ये करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। पेरेंट्स और ये 5 महीने में पेंडेमिक ने बहुत सिखाया, इट्स बीन अ ग्रेट टीचर। सो also I think connect is about trying to नो, सीखने की बात है। अगर मैं बच्चे को सिर्फ सिखाना ही चाहती हूँ और उसके साथ सीखना नहीं चाहती, तो वो कनेक्ट नहीं बनता। इट्स अबाउट ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड इन माई चाइल्ड, क्या कर रहा है मेरी बेटी, ये ड्राइंग कर रही है, अच्छा क्या बना रही है ड्राइंग में, कब कब ड्राइंग करती है, जब स्ट्रेस्ड होती है तब करती है, जब हैप्पी होती है तब करती है। इट्स अबाउट नोइंग माई चाइल्ड। काफी पेरेंट्स ने लिखा कि बच्चों उनको मुश्किल आ रही कि बच्चे लिखना नहीं चाह रहे या पढ़ने को अवॉइड कर रहे हैं। Yes, this is also this is a different year. Maybe can we look at academic year 2020-21 as a different year? This year is not so much about just completing our syllabuses. It's also about focusing on the skills we are building in the online classes. We are looking at कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, या बच्चे का डिजायर है लर्निंग के लिए, बच्चा कुछ भी सीख रहा है, लिख नहीं रहा है, उसको समझ में आ रहा है क्या, बच्चा हम एक्टिविटीज भेज रहे हैं स्कूल से रेगुलरली, म्यूजिक, आर्ट, डांस, थिएटर, एवरीडे। मेरा बच्चा कौन सी चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या उन चीजों को मैं देख करके जो मेरा बच्चा कर रहा है उसकी वीडियो बना सकती हूँ। Children are picking up research skills, they are researching, coming back, they are doing a lot of work online. This year is about also independence. I think शायद लाइफ टाइम में ये पहली बार और शायद आखिरी बार ऐसा हुआ कि हम इतना टाइम घर पे हैं अपने बच्चों के साथ। और कुछ पेरेंट्स जो शेयर कर रहे हैं, दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन टीच अ लॉट टू आवर चाइल्ड। हम जो भी कर रहे हैं बच्चा हमारे साथ कनेक्ट करते करते वो सीख सकता है। इट्स ऑल्सो अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन। एंड बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा, नहीं लिख रहा, तो क्या हम बच्चे के साथ बच्चे जैसा बन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मदर ने बताया कि उसकी बेटी क्लास 3 में, उनकी बेटी क्लास 3 में बोल रही है, मम्मी मुझे नहीं लिख के भेजने 10 सेंटेंस। तो मम्मी ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी नहीं लिखने, पर तुम्हें आंसर्स तो सारे आते हैं 10 के 10। तुम एक काम करो, हम ऐसा करें कि तुम वीडियो रिकॉर्ड, इसको वीडियो रिकॉर्ड कर, ऑडियो रिकॉर्ड कर ले जो तुम बोल रही हो, और उसके बाद जब 10-15 मिनट बाद तुम्हारा मन करे तुम वो 10 सेंटेंस लिख के भेज देना मैम को। बच्चे ने कहा ओके। सो इट्स अबाउट बीइंग प्लेफुल विद माय चाइल्ड। बच्चा अभी नहीं करा तो उसको चॉइस दे।
फिफ्थ का बच्चा है, वो अगर मैथ्स देख रहा है, अवॉइड कर रहा है, वो मैथ्स के सम्स नहीं करना चाह रहा, उसका मन नहीं कर रहा. So as a father, I can, come and sit with my child and say, oh, maths में fractions तुमको भी मुश्किल हो रही है, मुझे भी होती थी. अच्छा, तुम्हें इससे पहले वाला समझ में आ गया, एलसीएम एचसीएफ, तुम बताओ कि फ्रैक्शंस में कैसे कैसे पढ़ा रही है टीचर. So that's how we get to connect to the child and support the child in what the child wants to, we want the child to write or study. Screen time. Many parents are, yeah, screen time बढ़ गया है सबका. बच्चों का तो बढ़ा है, प्रोपोर्शनेटली पेरेंट्स का भी तो बढ़ा है. सो हम ये देखें कि अगर ये स्क्रीन टाइम बढ़ा है तो ये इस वक्त क्लासेस ऑनलाइन है, हम लोगों के काफियों के काम भी ऑनलाइन है. तो इस वक्त वी नीड टू सी कि हम डिफरेंट पेरेंट्स डिफरेंट तरीके से स्क्रीन टाइम को हैंडल कर रहे हैं. वी नीड टू लुक एट हम क्या करना चाहते हैं. क्या हम मिलकर के घर में कुछ रूल्स बनाना चाहते हैं कि हम ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज हम टीवी इस टाइम पे देखेंगे, या खाने के टाइम पे सर्टेन जोन्स जब हम, या सर्टेन टाइम जब हम स्क्रीन टाइम पे नहीं होंगे. जैसे सोते वक्त कुछ फैमिलीज में 10 बजे फोन सब रख लेते हैं कोने पे, तो अब हम फोन्स नहीं देखेंगे. या खाते वक्त हम लोग टीवी नहीं, हम लोग इस वक्त फोन्स नहीं देखेंगे. एंड सम पेरेंट्स आर, कुछ पेरेंट्स फोन को छोड़ दे रहे हैं टेबल पे, तो बच्चा जल्दी उठा ले रहा है. बट अगर आर यू द पेरेंट जो कि पेरेंटल कंट्रोल लगाना चाहेंगे, तो यू कैन पुट द फिंगर पासवर्ड. मेनी पेरेंट्स आर पुटिंग इन द फिंगर पासवर्ड. ऐसे में हम फोन बच्चे को दे रहे हैं बाद में, बट फोन फ्री एक्सेसिबल नहीं है बच्चे को. So we can gradually build these boundaries with the screen time. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, हमारे बच्चे अगर ऑनलाइन हैं तो हमें उनकी सेफ्टी देखनी है कि वो हमारा बच्चा ऑनलाइन कितना सेफ है. तो ये देखें कि आते जाते बच्चे के साथ देखना पड़ेगा बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है. क्या मेरा बच्चा व्हाट्सएप चैट्स पे ठीक है, बट चैट रूम्स में तो नहीं है, इंस्टाग्राम फेसबुक में तो नहीं है, बिकॉज ये उसकी एज की चीज़ नहीं है. मेरा बच्चा किस तरह की वीडियोस देख रहा है. पेरेंट्स कैन इवन पुट पेरेंटल कंट्रोल्स on the videos their children are watching, that they are not under above 12 years of age. You can put those controls. एंड ये एक नया चैलेंज है हम सबके लिए. हम सब सीख रहे हैं बच्चों के साथ कैसे ऑनलाइन कनेक्ट करें, कैसे ऑनलाइन उनको रेगुलेट करें मिल करके. अगर हम कहें कि चलो अभी टीवी बंद कर दो, अभी मोबाइल बंद कर दो, वैसे लड़ाई में चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं. हमें मिलके वर्कआउट करना पड़ेगा. एंड कनेक्ट जब हम रेगुलेट तब करते हैं जब कनेक्ट हो. तो अगर इसको देखें तो अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हो रही हूँ, सबसे पहले मैं शांत हूँ, and then can I have some fun with my child online. ऑनलाइन कुछ पेरेंट्स मिलकर के टीवी देख रहे हैं, या कोई वीडियो गेम, कोई गेम खेल रहे हैं, या इकट्ठे हम लोग किसी के यहाँ नेटफ्लिक्स है, इकट्ठे पेरेंट्स नेटफ्लिक्स देख रहे हैं. सो कुछ बच्चे कुकिंग चैनल्स देख रहे हैं, तो पेरेंट्स उनके साथ बैठ के देख रहे हैं. सो क्या चीज़ है जो बच्चा ऑनलाइन करो, मैं उसके साथ भी इंजॉय करना चाहती हूँ. सो फन के बाद रेगुलेट करना आसान होता है. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि मेरा बच्चा ऑनलाइन कर क्या रहा है, कुछ क्रिएटिव भी कर रहा है क्या, या सिर्फ ऑब्सेसिवली सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स में ही है. अगर वो सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स में, या अगर सिर्फ एक चीज में और हमें लग रहा है क्रिएटिव नहीं कर रहा है, then we can gradually play with the child and begin to talk about it. We can create rules together. और मुझे लगता है हम सब सीख रहे हैं. मैं अगर अपना एग्जाम्पल शेयर करूं एज अ पेरेंट, तो चैलेंजेस आ रहे हैं ऑनलाइन. तो बच्चे के साथ अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमने वर्कआउट किया, मैंने और मेरे बच्चे ने, कि अगर मेरी डॉटर को मान लीजिए व्हाट्सएप चैट करना, तो इतना समय वो व्हाट्सएप चैट करेगी. वो म्यूजिक सीख रही है, तो उसको 30 मिनट्स का म्यूजिक का टाइम रखा हुआ है. उसका कुछ टाइम उसको जब म्यूजिक सुनना, तो हम लोग प्लेलिस्ट बनाकर सुनते हैं. एंड नीचे मैंने एक लिंक जो हमने लिखा है, एलिजाबेथ, देयर आर मेनी पीपल ऑनलाइन जो इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स का कंसर्न है. डॉक्टर एलिजाबेथ मेलोविडो, नीचे जो लिंक है, इन्होंने डिजिटल पेरेंटिंग कम्युनिटी ग्रुप बनाया फेसबुक पे, जिसमें मैं भी हूँ. एंड वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मिलकर आके शेयर करते हैं कि उनको ऑनलाइन में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या उनको क्या समझना है, और वहाँ मिलके सीखते हैं कि बच्चे से कैसे ऑनलाइन कनेक्ट करें. सो इट इज पॉसिबल. और एक चीज और कि अगर मैं टीवी देख रहा हूँ और मैं मोबाइल पे हूँ, और मेरा टीवी और मेरा मोबाइल इंपॉर्टेंट है,
तो मैं ऐसे तो नहीं सोच रहा कि मेरे बच्चे का टीवी इंपॉर्टेंट नहीं और उसका मोबाइल क्यों नहीं इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को भी देखूं कि मैं अगर ऑनलाइन हूं तो मेरा बच्चा इज लाइकली टू बी मोर ऑनलाइन। अनदर कंसर्न, यस, पेरेंट्स आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, थक जा रहे हैं कई तरह के काम इकट्ठे करते हुए। कई बार घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा या बच्चों को पढ़ाना भी है ऑनलाइन, काम भी करना है। तो हम लोग भगवान नहीं है, वी आर नॉट गॉड्स। तो कैन आई लेट डाउन माई डिफेंसेस एंड टेल माई चाइल्ड कि बेटा मैं थक गई। बच्चे वैसे भी गेज कर लेते हैं कि मम्मी थकी हुई है, मम्मी बैड मूड में है, पापा का मूड खराब है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से कि हम थक गए हैं कि आज मेरा वेबिनार है या मुझे आज काम करना है। तो तुम वो प्लेट से खाना उठा करके यहाँ ले आओगे, प्लेटें अंदर रख दोगे, आई कैन टॉक अबाउट इट। और बच्चे सुनते हैं, बच्चे देखते हैं, बहुत रिसेप्टिव होते हैं हमारे बच्चे। तो जब हमारा बच्चा उठ करके चार्ज लेता है, दैट्स व्हेन वी अलाउ द चाइल्ड टू टेक चार्ज। बच्चा कहेगा मैं स्लैब साफ कर देता हूँ मम्मा, इसको करने दें। हेल्प मांग सकते हैं हम अपने बच्चे से, हम टुगेदर एज अ फैमिली। एंड आई थिंक वी नीड टू हैव कनेक्ट करके, अगर हमको कुछ वर्कआउट करने हैं टाइम टेबल्स, वी नीड टू हैव फैमिली टॉक्स इन आवर होम, बातचीत। एज अ फादर, एज अ मदर, हम ये काम कर रहे हैं, ये करना है, ये हो गया, ये फीलिंग्स हो रही हैं, तब ये पॉसिबल है। One of the positive things which has been coming to me from many families is fathers are doing, some of the fathers are doing great job during pandemic. अभी ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अलग है, बाहर का काम अलग है और मम्मी किचन का काम करेंगी। अभी हार्ड रीसेट हो गया है पैंडेमिक में सबकी लाइफ में। तो बहुत सारे पापाज बहुत एक्टिवली पिच इन कर रहे हैं। आई गॉट सम पिक्स ऑफ पापाज मेकिंग फूड, घर पे खाना बना रहे हैं। कभी कभी पापाज बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रेल्स पे ले गए कभी सुबह अगर पार्क में खाली हैं तो, या बच्चे के साथ पापा घर आए जॉब से, बिजनेस से, अपना टीवी देख रहे हैं, चलो आ जाओ सब लोग मिलके टीवी देखते हैं, मैं आज भेलपूरी बनाता हूँ, आज कैसा रहा, चलो कैरम बोर्ड निकाल लें। आई थिंक पापाज हैव, dads have very good sense of humor, so you can use that up. Many of the parents are doing that, connecting, supporting the wife and supporting the children. And also, अगर मेरा बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा काम कर रहे हैं, उसके पापा काम कर रहे हैं, मम्मी काम कर रही है, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। तो हम अगर चाहते हैं फादर्स की हमारे बच्चे एक्टिव हों, तो हम भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ही मजेदार हो रहा है। यस, another thing which has come is about routine, setting the routine, how to engage my child. तो क्या हम बच्चों को अपने घर के काम में थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे सारा काम करवाएं, बट छोटे छोटे काम बच्चे करते हैं, जैसे क्लास 3 के, 4th के, 5th के, कपड़े फोल्ड करना या प्लेट अंदर रख देना, या नीचे कतरन गिर गई है कटिंग करते करते, कम से कम अपना आसपास का कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देना, बेड की सिलवट ठीक कर देना, 4-5 पौधों को पानी दे देना। तो अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, दे विल लाइक इट, उनको मजा आता है, वो करना चाहते हैं। और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अगर हम उनको कुछ काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बच्चे करेंगे और हमारे लिए भी रिलैक्स्ड होगा, क्योंकि हम उनको हर टाइम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। जब हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं तो उस वक्त पे थोड़ा उनको सेमी इंडिपेंडेंस मिलेगी बच्चों को। सो लेट अस इन्वॉल्व देम इन डूइंग सम वर्क इन द हाउस, कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने। एंड ऑल्सो इट विल बी अ विन विन फॉर मी, मुझे भी टाइम मिलेगा अपने लिए। तो हम कैसे टाइम टेबल्स बनाना मुश्किल है, बट हम रूटीन तो सेट कर सकते हैं कि अच्छा हम इस टाइम तक सो जाएंगे, क्योंकि हमें सुबह उठना, ऑनलाइन क्लासेस हैं, और हम इस टाइम पे अगर हमें खेलना है तो हम घर पे क्या खेल सकते हैं, खेलने का ये टाइम मैं कर सकती हूँ, 10 मिनट मुझे अब फ्री हो रहे हैं, मैं नीचे गैराज तक साइकिल में ले जा सकती हूँ अपने बच्चे को, प्ले टाइम फिक्स कर सकते हैं, फैमिली टाइम, सैटरडे संडेज में हम लोग मिलके पिक्चर देखेंगे, ये हमारा स्टडी टाइम है। तो कुछ कुछ विंडोज में हम क्रिएट कर सकते हैं, बट ये हम अकेले ना क्रिएट करें, बच्चे के साथ मिलकर उससे पूछ कर करवाएं, वही टाइम टेबल बनाएं। अगर वो खुद बनाएगा तो वो टाइम टेबल ओन भी करेगा और वो खुद हम उसको मिल करके नेगोशिएट कर सकेंगे। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, थोड़े थोड़े टाइम देखें, चाहे 10-10 मिनट का मिल रहा है, टू कनेक्ट विद माई चाइल्ड। कुछ पेरेंट्स लिखे हैं कि शाम को वो आते हैं, देन वो कैरोके पे, म्यूजिक पे वो इकट्ठे गाना गा ले रहे हैं,
या सम पेरेंट्स आर यू नो मिल करके बच्चे लड्डू बना रहे हैं. So children are doing different things, you know. How can I connect to my child? So ऑनलाइन पार्टिसिपेशन पे डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आए हैं पेरेंट्स के. कुछ पेरेंट्स ने शेयर किया कि उनको बहुत हेल्पफुल हो रहा है कि वो देख रहे हैं कि ऑनलाइन में बच्चों को टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं और वो सीख रहे हैं कैसे पढ़ाना है. और कुछ पेरेंट्स ने ये शेयर किया है कि दिक्कत हो रही है, बच्चा टाइम से उठता नहीं या क्लासेस को अवॉइड कर रहा है या वीडियो ऑन नहीं करता या लेट जाता है. तो हम ये देखें कि classrooms have come into our bedrooms. So now the role of a parent is like a teacher, is like a co-teacher and a monitor also. क्योंकि टीचर स्क्रीन से 32 बच्चों को 36 बच्चों को मॉनिटर तो कर रही हैं, बट हमारा बच्चा घर से क्या अटेंशन दे रहा है वो उसमें पेरेंट का इम्पोर्टेंट रोल है. तो हम जब क्लासरूम बेडरूम में आए तो क्या कैन वी इंश्योर कि बैठने के लिए छोटा सा फर्नीचर हो जहाँ बच्चा लाइक अ क्लास बैठ सके, टेबल चेयर. बहुत पेरेंट्स ये कर रहे हैं और उस स्पेस में प्रेफरेबली डिस्ट्रैक्शन ना हो, नॉइज ना हो और आते जाते लोग ना इंटरफेयर कर रहे हो, टीवी ना चल रहा हो. तो चाइल्ड हैज अ प्लेजेंट स्पेस जहाँ बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पाए. और जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस का अगर टाइम है, अगर 9 बजे का टाइम है, तो क्या मैं एज अ पेरेंट खुद टाइम से उठ करके बच्चे को रेडी कर सकता हूँ? परफेक्ट नहीं भी है, मान लीजिए अगर बच्चा नाश्ता नहीं कर पा रहा है, ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहा है, तो जब ब्रेक्स हो तब मैं उसको नाश्ता दे दूँ. क्लास के बीच में उसको कुछ खाने को या पीने को ना दूँ, बिकॉज देन मेरे बच्चे का ध्यान और बढ़ जाएगा, अटेंशन इश्यूज आएंगे. Another thing which parents have shared that what's working is that जब बच्चे ऑनलाइन हैं, कुछ गैजेट्स पे कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसी जगह पे रखें कि आते जाते हम देख सकते हैं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी नज़र पड़ सकती है, अलग से किसी सेक्लूडेड रूम में नहीं है बच्चा. एंड आते जाते ऑनलाइन क्लासेस है, आई कैन से कि बेटा मैथ्स की क्लास है, इसके बाद उसकी क्लास है, मैप्स हैं तुम्हारे पास, सब चीज़ें हैं, कोई सपोर्ट चाहिए, सुनाई दे रहा है. सो आई कैन डू अ फ्रेंडली चेक इन विद माई चाइल्ड टू सपोर्ट माई चाइल्ड इन ऑनलाइन पार्टिसिपेशन. आई थिंक 2 मिनट के लिए अगर हम रुके और देखें कि जब हम छोटे थे तो कौन सी ऐसी बातें थी जो हमें, जब हमारे मम्मी पापा ने जो हमसे कही, जो हमें हर्ट करी या हमें अच्छी नहीं लगी, अपसेट करी, और हम सोचे कि हम बड़े होके ऐसा नहीं करेंगे कभी भी. बट क्या हम कभी कभी स्ट्रेस में वो चीज़ें अपने बच्चों के साथ करते हैं? करते हैं, हम सब इंसान हैं, मेक मिस्टेक्स. तो और ये भी देखें कि जब हम छोटे थे कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम कनेक्ट करें अपने पेरेंट्स के साथ, हमें मज़ा आया. जैसे मुझे मेरी अपनी मदर, जब मेरी मदर पनीर बनाती थी तो मैं उनके साथ खड़ी होकर पनीर जब वो बनाती थी मैं देखती थी, या मेरे पापा गार्डनिंग करते थे. तो जो चीज़ें हमें पसंद आई, क्या हम उसमें से कुछ अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं? एक पेरेंट ने लिखा कि वो कंचे खेल रहे हैं आजकल बच्चे के साथ, बच्चे को बटरफ्लाई पकड़ना सिखा रहे हैं. So, you know, let's hold on to the good things of our childhood because that's the connect we have experienced. And we do that with our children, you know. And can we be less critical? हम दूसरे को टिक ऑफ थोड़ा कम कर सकते हैं. सबके लिए टफ टाइम है, अप्स एंड डाउन्स वाला. और हम बहुत परफेक्शन, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, गलतियां होंगी. एंड हमारे कल्चर में ग्रैटिट्यूड, शुक्राना अदा करना. तो अगर सब चीज़ें नहीं ठीक हो रही मेरे हिसाब से, मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट नहीं है वेल बिहेव या पढ़ाई में, तो भी कैन आई बी ग्रेटफुल कि हाँ आज का दिन मेरे पास, मेरे सर पे छत है, मेरे पास 2 टाइम का खाना है, मेरे घर में कोरोना आया और चला गया, मेरे पास मेरी सैलरी आ गई है. So can I be grateful for those small things because they help us feel okay and we can take one day at a time. इस पैंडेमिक में कोई भी पीछे अकेला नहीं रहेगा. इंडिया में 15 लाख स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं जो बंद हैं, और देखा जाए तो वर्ल्ड में 107 कंट्रीज हैं जहां पर ये हो रहा है. So a lot of children and parents are affected by this, and online classes is a regular phenomena.
तो हम इसमें जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो हम उसमें अकेले नहीं हैं. वी वोंट बी लेफ्ट बिहाइंड, वी आर ऑल इन इट टुगेदर. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट, सोचिए उनके बारे में, वो बच्चे जो क्लास 12th में हैं, जो कॉलेज फर्स्ट ईयर में, उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है ना. हमारे बच्चे तो छोटे हैं. हम अपने पढ़ाई को, बिहेवियर को इतना स्ट्रेस पॉइंट ना बनाएं. और कनेक्ट ऐसा नहीं है कि एकदम बन जाता है. कनेक्ट बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है. जब मैं स्ट्रेस्ड हूँ, पॉज ले लूँ, आई कम इन टू काम, शांत हो जाऊँ, एनर्जी आ जाए, वापस आई गो बैक चार्ज, देन आई मेक एन एफर्ट टू कनेक्ट. So most important is my child is safe, my child is loved, and मेरा बच्चा ये फील करे कि my mama papa are ready to, they I'm heard. मेरे को वो सुन रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं. मेरे से गलती हो रही है तो भी मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे अपने पास बिठा ले रहे हैं. एंड यू नो देन मेरा बच्चा मेरे पास, मेरी बच्ची मेरे पास बार बार आएगी, बात करना चाहेगी, सुनना चाहेगी, और शायद मेरी गाइडेंस भी लेगी. तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट कनेक्ट. प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बट ये प्रोसेस है, एंड इट्स अ डेली प्रोसेस. ये कोई इजी मैजिक नहीं है. वी आर ऑल डूइंग इट. पेरेंट्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. मेनी पेरेंट्स आर शेयरिंग कि पैंडेमिक में उनको क्वाइट टाइम मिला है, जब वो शांत रह पा रहे हैं, बच्चों से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं. सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू, एक कोटेशन है जो मेरे मन में रही, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, which I'd like to share with you. Every time you criticize your children, they don't love you less, they love themselves less. हर दफा जब मैं अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करती हूँ, उसकी आलोचना करती हूँ, उसके नुक्स निकालती हूँ, तब बच्चा मुझसे कम प्यार नहीं करता. शायद मेरा बच्चा खुद से कम प्यार करता है. And it is difficult to change everything that's going on around you. सब कुछ नहीं बदल सकते हम अपने आसपास. Can we bring our focus back on things we can control? On this note, I'd like to hand over to my colleague Shivani ma'am, so we can do a question answer session. I'd like you to type out your feedback and comments and questions on the chat. Shivani ma'am, over to you. Thank you, Neerja. While parents are putting in their queries on the chat, I would also like to share one of the very important concern areas that has been shared by most of our parents, which is about the behavioral challenges that children are experiencing and the difficult behavioral patterns that they're exhibiting at this time, which includes aggressive behavior, irritability, oppositional behavior. So we'd like to begin with, we could take up this area, which has come from most of our parents. I can see parents have shared about the feelings of their children, the behaviors of their children. So let's look at this. बच्चों को जो ये फीलिंग्स हो रही हैं, जो पेंट अप फीलिंग्स हैं या दबी हुई फीलिंग्स हैं, उनको फीलिंग्स हो क्यों रही हैं, ये वाली फीलिंग्स, सो दैट वी कैन देन हैंडल आवर चिल्ड्रन. ये देखते हैं. इसलिए हो रही है क्योंकि कन्फाइनमेंट है. हम लोग अपने घर में, घर से बाहर जाने में रोक टोक है, सब इकट्ठे घर में हैं. रूटीन अफेक्ट हो गया है. बच्चे अपने सोशली कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने फ्रेंड से, वो परेशान है बच्चे. तो उनकी इस वक्त कौन सी नीड्स हैं, मेरे बच्ची की कौन सी ऐसी नीड्स हैं जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है या ऐसा फील कर रहा है, तो क्या चाहिए. तो इस वक्त जो हमारे बच्चे हैं 8 to 10 ईयर्स वाले, उनकी सोशल नीड है, उनको फ्रेंड्स से मिलने का मन करता है. तो अगर मेरा बच्चा कह रहा है कि फ्रेंड्स की याद आ रही है, तो उसको जूम कॉल करवा लें या व्हाट्सएप कॉल कर लें उसके फ्रेंड के साथ. या बच्चों की इस वक्त बहुत नीड है, दैट दे नीड टू, वो नई नई चीजें ट्राई आउट करना चाहते हैं बार बार. कभी म्यूजिक, कभी डांस, कभी स्पोर्ट्स, कभी आर्ट, कभी पजल्स, कभी कोडिंग. तो उनको क्या एनकरेज कर सकते हैं, देखें मेरा बच्चा क्या करना चाहते हैं. और दूसरा, अगर मेरा बच्चा जंप कर रहा है बेड पे बार बार, तो उस वक्त मैं देख रही हूँ उसकी प्ले नीड है. मेरा बच्चा बैठ के क्लास नहीं कर पा रहा, साइकिल एक्टिव बच्चा है, स्पोर्टी बच्चा है,
तो क्या मैं जब मैं फ्री होती हूँ अपने काम से, तो क्या 10 मिनट मैं उसको एज अ फादर या एज अ मदर उसको नीचे ले जा सकता हूँ साइकिल के लिए 10 मिनट गैराज के पास, या उसको पार्क ले जा सकती हूँ जहाँ हम उसको खुद सुपरवाइज कर सकते हैं अपने बच्चे को। और सो दैट विल, जिससे बच्चे की जब नीड्स मीट होती हैं तो थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस अपने आप। सो वी नीड टू जस्ट बी अवेयर कि मेरे बच्चे की नीड क्या है, उसके बिहेवियर ऐसा क्यों है, और हम उस नीड को अटेंड करें। अनदर इम्पॉर्टेंट वेरी सिंपल थंब रूल जो हम फॉलो करते हैं, अगर हम दो लोगों में स्ट्रेस है तो जो ज्यादा स्ट्रेस्ड है या जो ज्यादा मूडी हो रहा है उसको देख करके दूसरा वाला शांत हो जाए। अगर मेरा बच्चा स्ट्रेस में है या मूडी है, मैं उस वक्त उसको डिसिप्लिन ना करूं, या अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूं तो उस वक्त मैं हर चीज का ध्यान ना रखूं, थोड़ी देर में शांत हो जाऊं, आई कम इन टू काम। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स विच वर्क। घर पे तो हम ये करते ही हैं। Okay, so over to the other area which has come up is about the increase in screen time of our kids. So a lot of screen that they're exposed to now and excessive use of gadgets, and parents are concerned about the impact that it will have on their emotional and physical and mental health. So if we could take this up. Yes, absolutely, it's an important question. ऑनलाइन टाइम जैसे पहला था पैंडेमिक से पहले वैसा तो नहीं है। ये टाइम अलग तरह के टाइम है, और देखा जाए तो ऑनलाइन बच्चों का काफ़ी काम हो रहा है, ऑनलाइन उनकी क्लासेस हो रही हैं, वो लोग अपने फ्रेंड से भी बच्चे उसी पे बात कर रहे हैं, उनकी एंटरटेनमेंट भी ऑनलाइन ही हो रही है। तो ऑनलाइन बढ़ गया है। लॉकडाउन में तो डेफिनेटली एक्सेस है, बट इस वक्त हम ये देखें कि अगर ऑनलाइन है और मेरा भी बढ़ गया है प्रोपोर्शनेटली, सबसे इम्पोर्टेंटली, तो जब ऑनलाइन बढ़ गया तो हम इसको कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो क्या हम मिलकर के कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं ऑनलाइन बच्चे के साथ। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि ऑनलाइन में अगर मेरे बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ गया और मैं कहूँ एकदम जैसे फाइट में कि अभी बस और इससे ज़्यादा तुम मोबाइल नहीं करोगे, इससे ज़्यादा टीवी नहीं, टीवी बंद, मोबाइल बंद, तो अगर एकदम फाइटिंग करें, या अगर हम ऐसे पेरेंट हों, या अगर हम ऐसे हों कि हम एकदम अंधाधुंध बच्चा हमारा कुछ भी करे जा रहा है ऑनलाइन, हम उसको मॉनिटर नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे, तो वो दोनों एंड्स जो हैं पेरेंटिंग के वो उसके बीच में कहीं आए और कहीं मिल करके हम बैलेंस आउट करने की कोशिश करें कि मेरे बच्चे के साथ मैं ये इंटरेस्टिंग ऑनलाइन कर सकती हूँ। और देखा जाए तो ऑनलाइन हमारा भी तो काम ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अगर नेगेटिव्स हैं तो जैसे मतलब मेरी आंखों में दर्द हो जा रहा है या बच्चे लेजी हो जा रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम थोड़े ऐसे टाइम फ्रेम बनाएं जहां हम अपने बच्चे को फोन या गैजेट्स के साथ वो रहे बच्चा, और कुछ टाइम्स पे वो ना हो, तो वी कैन वर्क दिस आउट टुगेदर और हम उसके पॉजिटिव्स को साथ लेके चलें। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग, हम मिल करके वो कर सकते हैं। Sure, Geja, adding to what you just shared, it's so very important to collaborate and negotiate with them when it comes to screen time and other concerns. The next area which comes up as yet another very distinct area of challenge which we as parents are facing includes structuring their routine when they are at home for more time than usual these days, and how to engage them meaningfully. Especially with the younger kids, sometimes it becomes so challenging for the parents to keep them engaged and provide them with options. So that's an area which has come up. एक आपसे सवाल पूछती हूँ कि पिछले 5 महीने में जब हम ये टफ सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से टाइम थे, जब ऐसे कौन से गुड टाइम्स थे मेरे और मेरे बच्चे के बीच में, जब मेरा बच्चा मेरे पास आया, मेरी बच्ची मेरे पास आई और उसने मुझे कुछ दिखाया कि मैंने ये इंटरेस्टिंग किया, या मैं ये काम करना चाहता हूँ घर का, या वो कुछ शेयर करने आया, कनेक्ट करने आया।
So the times when my child is coming to me and bringing something new, interesting to share, or something new the child wants to learn, that's the time I catch my child and I appreciate my child. अगर मैं कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ और मेरा बच्चा उसको अप्रिशिएट करा तो मैं वो ज़्यादा बनाऊंगी ना. ठीक वैसे ही अगर मैं अपने बच्चे को अप्रिशिएट करूँ, अगर वो कुछ लेके मेरे पास आ रहा है, तो दैट इज द टाइम वो चीज़ें फिर बढ़ सकती हैं. वी कैन डू मोर ऑफ ऑफलाइन थिंग्स. बच्चे कई बार छोटी छोटी चीजें ले आते हैं. पोछा लगा रहे, बच्चा कहेगा मम्मा मैं भी पोछा लगाऊं, पापा मैं भी लगाऊं. या मैं एक मदर ने जैसे बोला कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है बेटा, आज मैं बहुत थक गई हूँ ऑनलाइन, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है. बच्चा जाकर के बर्फ ले आया अपने रुमाल में. तो व्हेन द चाइल्ड इज डूइंग दैट वी एनकरेज द चिल्ड्रन. एंड आई थिंक वी बिल्ड ऑन द कनेक्ट जो मेरा बच्चा शो कर रहा है. एंड द अदर थिंग इज दैट हम लोग अपने कल्चर में कई बार कहते हैं हम बच्चे से काम नहीं करवाएंगे कि बच्चा छोटा है. बट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के सेल्फ सफिशिएंट बने, अपने काम खुद करे. तो वो एकदम अचानक से तो नहीं होगा ना, हमें उनको धीरे धीरे बिल्ड करना है ना. तो अगर हमें उन्हें धीरे धीरे बिल्ड करना है तो अभी तो शुरू करेंगे. जो जो हम कर रहे हैं उसमें मैं अपने बच्चे के साथ अपना टाइम टेबल वीव करूँ. मेरा बच्चा मेरे साथ खड़ा, मैं जो भी कर रही हूँ, चाहे रसोई में हम लोग मिलकर के प्लेलिस्ट पे गाने चला ले रहे हैं, देख रहे हैं, मैं खाना बना रही हूँ, बच्चा बात कर रहा है या अपना काम कर रहा है. सो ये हमारा जो शायद दिस इज आवर लैंड विच इज लैंड ऑफ गांधी एंड वी टॉक अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर. क्या हम वो भूल जा रहे हैं? हर काम हमारा जो घर में है, घर में काम बहुत बढ़ गए हैं, प्रॉबेबली मेड्स कुछ घरों में नहीं है, कट डाउन्स हैं. तो ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम देखें कि मेरा बच्चा जो वैल्यू, जो काम है, ये मेरा काम है बेटा, तुम्हारा भी काम है, हम लोग मिलके कर रहे हैं. सो लेट्स वर्क इट आउट टुगेदर. इट इज आवर वर्क, आवर फैमिली वर्क. हर छोटा बड़ा काम सब बराबर है. दिस इज द डिग्निटी ऑफ वर्क. बच्चे जहाँ एंगेज्ड हैं, घरों में काम कर रहे हैं मिलकर के पेरेंट्स के साथ, वहाँ कोई बहुत एक्टिव लाइफ है. बच्चे लड्डू बना ले रहे हैं, दे डूइंग लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. हमें अपने बच्चे को सपोर्ट करना है कि वो सेफली जो करना चाहता है कैसे करे. One related concern which has come up on the chat, which I'd like to bring forward, is about how to be active 24 hours, how to have that stamina. When we're talking about routine, we're talking about creating options. So that's a challenge for parents, how to be themselves, dealing with being there with them and dealing with the situations 24 hours. So how to deal with that stress and how to equip oneself to deal with all this. So this is something which just came on chat. I think I will share with you what I practice as a counselor and as a parent. अप्स एंड डाउन्स दिन में बहुत रहते हैं सबके लिए. हर दिन अलग है, हर दिन का हर घंटा अलग है. जब मैं स्ट्रेस्ड हो रही हूँ, आई नीड टू टेक अ ब्रेक. एंड जब मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मेरा बिहेवियर में मैं डिसरेगुलेट हो गई हूँ, तो उस वक़्त मुझे रुकना है. आई हैव टू कम बैक टू मी. अगर मैं अपने आप को खुश रखूँगी और मैं खुद से कनेक्टेड हूँ, तभी तो मैं अपने बच्चे के पास जाके कनेक्ट करूँगी ना. आई नीड टू टेक केयर ऑफ मी, विच इज़ 10 मिनट की विंडो मिल गई, 10 मिनट में मैं बाहर गई, जाकर के एक कप चाय पी ली बालकनी में, या 10 मिनट के लिए मैं सोची अपने बच्चे को देख के कि मेरा बच्चा तो म्यूजिक सुन रहा है, मैंने इतने दिनों से नहीं सुना, एक गाना लगा के रोटी बना लूं. तो अपने लिए मैंने किया. तो सेल्फ केयर, अपने लिए एम्पैथी, 10-10 मिनट की चाय विंडो मिले. और आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी हियर एज अ पेरेंट, फॉर ऑल द पेरेंट्स अस हियर, वी आर ऑलरेडी डूइंग द बेस्ट वी कैन. बट हम भगवान नहीं हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. हम मिस्टेक्स करेंगे और हम सब इसमें इकट्ठे हैं. So let's look at what. और जब मैं शांत हो जाऊं, I come into calm down. After that I go out and connect with my child. जब एनर्जी हो तब कनेक्ट करूं. इट्स ओके, बच्चे एक्टिव हैं, वो कर लेंगे अपना काम, वो प्रेजेंट में रहना जानते हैं. हम लोग हेक्ड अप ना हो.
Nirja, the next area that has come up from queries and feedback given on the Google form is about children avoiding studies, their lack of motivation towards schoolwork. So how to help them handle academics and how to deal with schoolwork and deal with challenges related. Yes, this is a challenging issue, and online obviously is different from a regular class. I think जब हम अगर हमारा बच्चा पढ़ाई को अवॉइड कर रहा है या क्लासेस नहीं करना चाह रहा, तो कुछ चीज़ों में हमें एज अ पेरेंट सपोर्ट देनी है जो हम देते हैं, और कुछ चीज़ों में हमको फर्म भी रहना है. अगर लॉजिकली देखें एज अ कॉमन सेंस, तो जब हम छोटे थे हमने भी सीखा कि जो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, थोड़ी पसंद है, हमें वो भी करनी होती हैं. एक या दो चीज़ें जो हमें नहीं पसंद, आई लर्न इट कि वो दिन में करनी है. तो कुछ चीज़ों में वी हैव टू ट्रेन द चाइल्ड ग्रेजुअली. छोटे बच्चे को तो एज वी ट्रेन द चाइल्ड ग्रेजुअली, सो वी हैव टू बी फर्म कि बेटा क्लासेस तो हमको करनी पड़ेंगी. अगर तुम्हारा आज मन नहीं कर रहा या सुस्त हो या टाइम से हम नहीं सो रहे हैं, पर कल की क्लास तो करनी है बेटा, क्योंकि अगर हम क्लास मिस करेंगे या हम उस पर फ्रेश नहीं हुए तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा कि मैम जूम में करा क्या रही हैं. तो क्लास तो करनी है बेटा. सो मे बी वी नीड टू बी फर्म बट वेरी जेंटल एंड लविंगली सपोर्ट. अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मैं पता करूं मेरे बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्लास अवॉइड क्यों कर रहा है या पढ़ना क्यों नहीं चाह रहा है, और वहां सपोर्ट दूं. बट कुछ चीजों में मैं अडिग रहूं, वेरी जेंटल एंड फर्म. बेटा क्लास तो करेंगे ना हम लोग, आजा इकट्ठे बैठ के करते हैं, आज मैं यहाँ बैठ जाती हूँ. let me support my child. Yes, Nisha, and I think they've kind of made an attempt to answer most of the queries and the concern areas which came to us. And also at this point of time, I would like to share that we as a counseling team of the school would like to extend the support of being available to parents for counseling inputs with respect to challenges which make you feel overwhelmed, where you feel that you would need, professional help, or you need somebody to talk to and discuss out what could be the better approaches or alternatives to dealing with challenges which are coming up every day in these times of COVID-19. So parents are most welcome to connect at an individual level through an appointment with the school counselors who will be available for a counseling session and to provide an individual connect. So with this, as we come to the end of this webinar, I would like to thank all parents. And it's been a wonderful opportunity for us to be here on this platform in times of social distancing to get this valuable opportunity to connect with our parents and to understand and learn about the various coping strategies that parents are already using and what more can be done. Here we both would like to extend our hearty thanks to Suminder ma'am, our trustee, who's been the inspiration behind this webinar. And not only this, I think behind all child-centered interventions that we are able to formulate and execute in school, keeping children at the center and working towards their complete well-being. And big thanks to Principal Sir and Sonia ma'am for their continued support, and the entire Learning Center team and the computer department, which helped greatly to put this together. So it's been a wonderful experience, and we look forward to the subsequent sessions in the webinar series, which we'll be having for the other grades parents as well. Thank you.